اگر اب تم نے مجھے پریشان کیا تو میں تم سے بہت برا پیش آؤں گا، 20 سالہ ارحم خانزادہ نے 12 سالہ پریزے سے کہا۔ اپنے رشتے بچانے کے لیے دادا سائی نے زبردستی اس کی شادی پریزے سے کی تھی اور پریزے کو ارحم کے کمرے میں رخصت کر دیا تھا۔ وہ اس رشتے پر راضی نہیں تھی جب یہ غصے سے صوفے پر لیٹا تھا۔ یار ارحم لالا، تم اتنے کھڑوس کیوں ہو؟ کچر کچر کر کے پاپڑ کھاتے اس نے لاپرواہی سے کہا تو ارحم ضبط سے مٹھی بیچ گیا۔ میں تمہارا لالا نہیں ہوں، غصے سے کہا۔ ہاں، تم جیسا کھڑوس انسان ہمارا لالا نہیں ہو سکتا، وہ بول کر ہنسنے لگی تو ارحم غصے میں اس کی جانب بڑھا، پر اس کی معصومیت دیکھ کر ارحم خانزادہ صوفے پر لیٹا چھت کو گھور رہا تھا۔ کمرے میں پھیلی خاموشی اس کے دل کی بے چینی کو مزید بڑھا رہے تھے۔ وہ اپنے دادا سائیں کے فیصلے کے خلاف بغاوت کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ ان کے روب کے سامنے ہمیشہ کی طرح خاموش ہو گیا تھا، اور اب ایک بار پھر اس کی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ اس کی مرضی کے بغیر ہو گیا تھا۔ ارحم خانزادہ ایک جاگیردار خاندان میں پیدا ہوا۔ خاندان کی روایات، سخت اصول اور دادا سائیں کا دبدبا اس کے بچپن کا حصہ تھا۔ ارحم کے والد جلدی فوت ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے وہ دادا سائیں کے زیر سایہ پلا بڑا تھا۔ دادا سائیں کے لیے ارحم ایک وارث تھا جسے خاندانی وراثت کو سنبھالنا تھا۔ ارحم دادا سائیں سے بہت پیار اور محبت کرتا تھا۔ دادا سائیں کی کوئی بات بھی نہیں ٹال سکتا تھا۔ ارحم بچپن سے ہی بہت اچھا بچہ تھا۔ بچپن تو اس پر جیسے کبھی آیا ہی نہ ہو۔ جب سے اس کے والد کی وفات ہوئی تھی وہ دادا کی سرپرستی میں رہتا تھا۔ دادا سائیں ہر وقت اس کو وراثت سکھانے اور پڑھنے کی تلقین کرتے تھے، جس سے ارحم نے کبھی بچوں کی طرح شرارتیں کی ہی نہ تھیں، جس نے ارحم کو سخت مزاج بنا دیا تھا۔ دوسری طرف 12 سالہ پریزے کو زندگی اس کی چھوٹی سی دنیا سے نکال کر ایک ایسی حقیقت میں ڈال گئی تھی جس میں وہ سمجھ نہیں سکتے تھے۔ اس کی آنکھوں میں معصومیت کے ساتھ اس کی زندگی کے ایک اور موڑ پر لے آئی تھی۔ ارحم کے والد کی وفات نے ارحم کی زندگی کو بدل دیا تھا، جس نے اس کی شخصیت کو بچپن میں ہی جوانی کا رخ دے دیا تھا۔ ارحم کا بچپن ایک خوشگوار ماحول میں شروع ہوا تھا، جہاں اس کے والد اسے بے حد چاہتے تھے اور ہمیشہ اس کی چھوٹی چھوٹی خواہشات پوری کرتے تھے۔ وہ اپنے والد کو نہ صرف ایک سرپرست بلکہ ایک دوست اور رہنما کے طور پر دیکھتا تھا۔ لیکن جب ارحم صرف 10 سال کا تھا، اس کے والد کی اچانک وفات نے اس کی زندگی کا رخ بدل دیا۔ والد کی وفات کے بعد ارحم کو اپنے دادا سائیں کے سخت اصولوں کے تحت رہنا پڑا۔ دادا سائیں کا رویہ جذبات سے خالی اور اصول و ضوابط سے بھرا ہوا تھا۔ وہ ارحم کو صرف ایک جاگیردار خاندان کے وارث کے طور پر دیکھتے تھے اور اس کی تربیت اسی نظریے کے تحت کی گئی تھی۔ ارحم کے دادا اس سے بہت محبت کرتے تھے، لیکن وہ ارحم کو ایک ایسی شخصیت بنانا چاہتے تھے جو ان کی وراثت، ان کے خاندان اور ان کے نام کو زندہ رکھ سکے۔ ان کی اس خواہشات نے ارحم کی زندگی کو بالکل پھیکا کر کے رکھ دیا تھا۔ دادا سائیں جیسا چاہتے تھے ارحم ویسا بن نہیں سکتا تھا، اور دادا سائیں کی تربیت نے جیسا ارحم کو بنا دیا تھا وہ ویسا بننا نہیں چاہتا تھا، اور ارحم جاگیرداروں کی اولاد میں سے تھا۔ آج تک قبیلے کے فیصلے ارحم کے دادا جان کرتے تھے۔ جب سے ارحم کے والد جوان ہوئے تھے وہ اپنے والد کے ساتھ قبیلے کے فیصلے کیا کرتے تھے۔ اب یہ ذمہ داری ارحم نے سنبھال لی تھی۔ دادا یہ بھی جانتے تھے کہ ارحم نرم دل اور مختلف قسم کا انسان ہے۔ اگر وہ ارحم کی تربیت اصولوں پر نہ کرتے تو ان کے خاندان اور روایات کی ساخت ختم ہو جانی تھی، جو اب صرف ارحم پر مبنی تھی۔ والد کی غیر موجودگی نے ارحم کو بچپن کی خوشیوں سے محروم کر دیا۔ اس کی زندگی میں محبت، تحفظ اور آزادی کی کمی پیدا ہو گئی، جس نے اس کے دل کو سخت اور اس کی طبیعت کو غسیلا بنا دیا تھا، جس سے ارحم اپنے اندر کے نرم دل انسان کو کھو رہا تھا۔ ارحم پر کم عمری میں ہی خاندانی عزت اور روایات کا بوجھ ڈال دیا گیا تھا۔ دادا سائیں نے اسے یہ سکھایا کہ جذبات کمزوری کی علامت ہے اور ایک جاگیردار کو ہمیشہ سخت اور فیصلہ کن رہنا چاہیے۔ اس سب کی بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ ارحم کا کوئی بڑا یا چھوٹا بھائی نہ تھا۔ ارحم کے والد بھی اکیلے ہی بھائی تھے، اس لیے سب ذمہ داریاں اب ارحم کو خود ہی اٹھانی تھیں۔ ارحم نے جوانی میں اپنی زندگی پر کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن دادا سائیں کا سایہ ہر وقت اس پر حاوی رہا تھا۔ وہ ایک آزاد زندگی جینا چاہتا تھا، لیکن اپنی ذمہ داریوں کے باعث کبھی ایسا نہ کر سکا تھا۔ وہ جب بھی اپنے اندر کے آزاد انسان کو جگانے کی کوشش کرتا تھا، دادا سائیں تبھی اسے مار کر روایات، ذمہ داریوں اور ایک پٹھان ہونے کا احساس اس کے اندر جگا دیتے تھے۔ اب ارحم اسے مکمل بھولنے لگا تھا،
کہ اس کی خود کی بھی کوئی خواہشات ہیں۔ دادا سائیں ارہم کو ہر جگہ اپنے ساتھ لے کر جایا کرتے تھے۔ آج دادا سائیں کو گاؤں جانا تھا۔ پہلے ارہم ان سب کاموں سے بہت چڑا کرتا تھا، مگر اب اسے عادت ہو گئی تھی اور یہ معلوم بھی ہو گیا تھا کہ وہ دادا سائیں کو جتنا بھی منع کرے وہ اسے ساتھ لے کر ہی جائیں گے۔ ارہم جب پہلی بار گاؤں اپنے دادا سائیں کے ساتھ آیا تو اس کی نظر گل پر پڑی۔ گل کی شخصیت میں موجود سادگی اور خلوص نے ارہم کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ ارہم کو گل کو دیکھتے ہی اپنائیت محسوس ہونے لگی۔ اسے وہ کچھ اپنی اپنی لگنے لگی تھی۔ وہ اس کی طرف کھینچا چلا جا رہا تھا۔ گھر جانے کے بعد بھی بہت دیر تک صرف گل کو ہی سوچتا رہا۔ وہ بے حد خوبصورت لڑکی تھی جو عام سے ثقافتی لباس میں بہت کمال لگ رہی تھی۔ گل کی خوبصورتی اور ارہم کو اپنی جانب کھینچتی تھی۔ ارہم اب گل کو دیکھنے روزانہ کھیتوں پر جایا کرتا تھا۔ ارہم کی گل سے پہلی ملاقات ایک معمولی سے واقعے کے دوران ہوئی، جب ارہم گاؤں کے کھیتوں میں گھوم رہا تھا اور گل اپنی روزمرہ کی مصروفیات میں لگی ہوئی تھی۔ ارہم نے اسے پانی کا ایک گھڑا اٹھاتے دیکھا اور اس کی محنت اور خودداری سے متاثر ہوا۔ شروع میں گل ارہم سے بات کرنے میں ہچکچاتی تھی کیونکہ وہ اسے گاؤں کا مالک سمجھتی تھی، لیکن ارہم کی عاجزی اور دوستانہ رویے نے گل کو آہستہ آہستہ ارہم کے قریب کر دیا۔ دونوں کے درمیان چھوٹی چھوٹی اتفاقیہ باتوں نے ایک مضبوط تعلق کی بنیاد رکھی۔ وہ ارہم کو سمجھنے لگی تھی اور ارہم کی زندگی ایک بار پھر سے خوشیوں بھرا وقت گزرنے کا موقع دے رہی تھی۔ لیکن یہ وقت اتنی جلدی گزر جائے گا ارہم کو معلوم نہیں تھا۔ گل کی خوش اخلاقی اور مثبت سوچ نے ارہم کے دل پر گہرا اثر ڈالا تھا۔ اس کی باتیں ارہم کو زندگی کا ایک نیا زاویہ دکھاتی تھیں جو اپنی سخت روایات کے باعث کبھی نہیں دیکھ پایا تھا۔ ارہم نے جلد ہی محسوس کیا کہ وہ گل کی طرف کھینچتا جا رہا ہے۔ گل کا بے ساختہ ہنسنا، اس کی آنکھوں میں چمک اور اس کی زندگی کو جینے کی معصوم خواہش نے ارہم کے دل میں ایک نئی دنیا بسا دی تھی۔ ارہم جانتا تھا کہ گل اور اس کا تعلق خاندانی اصولوں کے خلاف تھا۔ دادا سائیں کے سخت اصول اور جاگیردانہ نظام انہیں ایک ہونے کی اجازت کبھی نہیں دے سکتے تھے۔ یہ خیال بھی ارہم کے ذہن سے نہیں نکلتا تھا، لیکن کسی بھی صورت وہ گل کو اپنی زندگی سے جانے نہیں دے سکتا تھا۔ گل اس کی خوشیوں کا مرکز تھی جسے وہ خود سے جوڑ چکا تھا۔ ارہم گل سے بے پناہ محبت کرتا تھا اور اس کی خوشیوں کے لیے اپنی محبت کو قربان کرنے کے لیے بھی تیار تھا۔ گل بھی ارہم کی محبت میں گرفتار ہو گئی تھی، لیکن وہ اس حقیقت سے واقف تھی کہ ان دونوں کی دنیا بالکل مختلف ہے۔ وہ جانتی تھی کہ جاگیردانہ نظام میں ایک معمولی گاؤں کی لڑکی کا ارہم جیسی شخصیت سے تعلق ناممکن تھا، مگر گل کو ارہم پر پورا یقین تھا کہ وہ اسے کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ گل بہت ہی زیادہ نیک دل اور اچھی لڑکی تھی۔ اپنے خاندان کی کفالت کے لیے محنت کرتی تھی، کبھی کھیتوں میں کام کرتی تو کبھی اپنے ہاتھ کی بنائی ہوئی چیزیں بیچ کر روزگار کماتی تھی۔ وہ خوددار بھی تھی اور کسی پر بوجھ بننا پسند نہیں کرتی تھی۔ گل کا خواب تھا کہ وہ گاؤں سے باہر جا کر اپنی زندگی بنائے اور آزادانہ طور پر اپنے خوابوں کو پورا کرے، لیکن گاؤں کی روایات اور اپنے حالات کی وجہ سے وہ خود کو گاؤں تک محدود رکھنے پر مجبور تھے۔ دادا سائیں ایک سخت گیر اور روایتی جاگیردار تھے جن کے نزدیک خاندان کی عزت اور روایات زندگی کی سب سے بڑی حقیقت تھی۔ وہ ارہم کی پرورش ایک مثالی جاگیردار کے طور پر کر رہے تھے۔ وہ ان کے لیے یہ ضروری تھا کہ ارہم وہی کرے جو خاندان کی عزت کے لیے بہتر ہو، کیونکہ ارہم ہی ان کے خاندان کا آخری چشم و چراغ تھا۔ پریزے ارہم کے خاندان کے ایک قریبی دشمن فیملی سے تعلق رکھتے تھے۔ دونوں خاندانوں کے درمیان کئی سالوں سے تنازع چل رہا تھا جو زمینوں، جائیداد اور طاقت کی کشمکش پر مبنی تھا۔ دادا سائیں نے محسوس کیا کہ یہ دشمنی نہ صرف خاندان کی ترقی کو نقصان پہنچا رہی ہے بلکہ گاؤں میں ان کی عزت اور وقار کو بھی خطرہ لاحق ہے۔ انہوں نے سوچا کہ ارہم اور پریزے کی شادی کے ذریعے اس دشمنی کو ہمیشہ کے لیے ختم کیا جائے۔ ان کے نزدیک یہ شادی نہ صرف ایک خاندانی اتحاد کا ذریعہ تھی بلکہ علاقے میں ان کی طاقت کو مضبوط کرنے کا بھی ایک طریقہ تھا۔ وہ ارہم کی زندگی کو محفوظ اور خوشحال دیکھنا چاہتے تھے۔ وہ اس پرانی دشمنی کو ارہم کے گلے نہیں ڈالنا چاہتے تھے۔ وہ ارہم کو ان سب سے بچانا چاہتے تھے۔ پریزا ایک زندہ دل، شوخ اور شرارتی لڑکی تھی جس کی زندگی سے بھرپور شخصیت ہر کسی کو اپنی طرف متوجہ کرتی تھی۔ وہ نہ صرف اپنی معصوم شرارتوں سے اپنے گھر والوں اور گاؤں والوں کو حیران کرتی تھی بلکہ اپنے منفرد انداز کی وجہ سے سب کے دلوں میں اپنی جگہ بناتی تھی۔ پریزے کا کردار اپنی عمر کے لحاظ سے کچھ زیادہ ہی بے فکر اور آزاد تھا اور یہی اس کی خوبصورتی کا راز تھا۔ پریزے کو کسی بھی بات یا کام کرنے سے خوف نہیں آتا تھا، چاہے وہ کسی بڑے کے ساتھ مذاق کرنا ہو یا گاؤں کے لڑکوں کو تنگ کرنا۔ اگر کوئی اسے ڈانٹنے کی کوشش کرتا تو وہ الٹا سوال جواب کر کے
अपनी बेगुनाही साबित कर देती या उन्हें खामोश करवा देती। दादा साईं जैसे सख्त गिर शख्स के सामने भी वो अपनी बात करने से हिचकिचाती नहीं थी और यही चीज़ सबको हैरान करती थी। वो अपनी छोटी छोटी चालाकियों से सबको परेशान करती। मसलन पानी भरने के बहाने कुएं पर जाकर दोस्तों के साथ बैठकर कहानियां सुनना और देर तक वापस न आना। गाँव के बच्चे प्रीजे को अपना लीडर समझते थे क्योंकि वो सबसे ज़्यादा चालाक और ज़हीन थी। वो बच्चों को नित नए खेल खेलना सिखाती और अक्सर उनके साथ मिलकर गांव के बड़े बूढ़ों से मजाक भी कर लिया करती थी। परीजे दिलकश होने के साथ बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी थी, जो हर कोई इसकी गलती को भी नज़रअंदाज कर दिया करता था। बहुत दिनों से पंचायत में दादा साईं की दुश्मनी के फैसले होते रहे और बिलाखिर ये तय पाया कि प्रीजे और अरहम की शादी कर दी जाए। प्रीजे और अरहम की शादी का वाक़या ख़ानदान की रवायात, जागीरदाना इज्जत और दादा साईं के गैर मुतज़लज़ल फैसले का नतीजा था। गांव के दोनों ख़ानदानों के दरमियान सालों से चलने वाली दुश्मनी ने हालात को कशीदा कर रखा था और दादा साईं, जो अपने ख़ानदान की इज्जत और ताकत को बरकरार रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे, उन्होंने इस दुश्मनी को ख़त्म करने के लिए एक बड़ा कदम उठाने का फ़ैसला किया। उन्होंने अरहम और प्रीजे के निकाह का ऐलान कर दिया। अरहम को यह खबर उस वक्त दी गई जब वो अपनी यूनिवर्सिटी की तालीम मुकम्मल करके गाँव वापस आया था। अरहम, जो गुल के साथ अपनी मोहब्बत में खोया हुआ था, इस फैसले पर गुस्से और बेबसी के आलम में आ गया, लेकिन दादा साईं के हुक्म के आगे सर झुकाने के अलावा इसके पास कोई रास्ता नहीं था। दूसरी जानिब प्रीजे को जब इस फैसले के बारे में बताया गया तो उसने अपनी शरारती और बेफिक्री तबीयत के बावजूद इसे मजाक में लिया। वो नहीं समझ सकी कि ये शादी उसकी ज़िंदगी में कितनी बड़ी तब्दीली लाने वाली है। शादी की तैयारियां जल्दी में की गईं। दोनों ख़ानदानों ने बड़ी धूमधाम से निकाह की तकरीब रखी ताकि गांव वालों के सामने अपनी दुश्मनी के खात्मे और इत्तेहाद का मुजाहरा किया जा सके। प्रीजे अपनी शौखियों के साथ हर रस्म को दिलचस्प बना रही थी, जबकि अरहम खामोश और नाराज़ खड़ा अपने दिल की उलझनों में गुम था। दादा साईं की मौजूदगी और हुक्म के खौफ से किसी ने अरहम के चेहरे पर छाई नापसंदीदगी और उदासी को नज़रअंदाज कर दिया था। अरहम को इस फैसले के बारे में सबसे आखिर में बताया गया, वो भी सिर्फ रस्मी तौर पर। दादा साईं ने अरहम से कहा कि ये शादी ख़ानदान की इज्जत और वक़ार के लिए ज़रूरी है और अगर वो इनकार करेगा तो ना सिर्फ दादा साईं बल्कि पूरा ख़ानदान शर्मिंदा होगा। अरहम ने अपने दादा के दबाव में आकर इनकार करने की हिम्मत नहीं की क्योंकि वह बचपन से दादा की सख्ती और असूलों का पाबंद था। अरहम इस शादी के लिए कतई तैयार नहीं था क्योंकि उसके दिल में गुल की मोहब्बत बसी हुई थी। उसने कई बार दादा साईं को समझाने की कोशिश की, लेकिन दादा साईं ने उसे सख्ती से खामोश करवा दिया और कहा कि यह फैसला अरहम की मर्जी से ज़्यादा ख़ानदान की ज़रूरत है। अरहम के अंदर एक बगावत जन्म ले रही थी, लेकिन वो उसे दबाने पर मजबूर था क्योंकि वह अपने दादा के सामने बात करने की हिम्मत नहीं कर सका। जिंदगी ने एक बार फिर अरहम को तोड़ कर रख दिया। अरहम को गुल का सामना करने की हिम्मत नहीं हुई। वो जानता था कि गुल उसके फैसले को कभी नहीं समझेगी और ये जुदाई दोनों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त होगी। वो गुल से दूर हो गया क्योंकि वो उसके दिल में शर्मिंदगी और बेबसी के जज्बात पैदा हो गए थे। अरहम के पास इस सवाल का जवाब नहीं था जो गुल उससे करेगी। अरहम का निकाह धूमधाम से हो गया। निकाह की रात जब प्रीजे को अरहम के कमरे में रुखसत किया गया तो वह अपनी मासूम शरारतों और बातों से अरहम को खुश करने की कोशिश करती रही, लेकिन अरहम जो गुल की मोहब्बत और दादा साईं के फैसले के खिलाफ अपनी बेबसी के बोझ तले दब चुका था, प्रीजे के हर अमल को नज़रअंदाज कर रहा था। शादी का ये बंधन अरहम के लिए सिर्फ एक ज़बरदस्ती की गई जिम्मेदारी थी, लेकिन प्रीजे के लिए ये एक नया सफ़र था जिसमें वो अपनी शौक तबीयत के ज़रिए अरहम के दिल तक पहुंचने की कोशिश करना चाहती थी। कचर कचर करके पापड़ खाती प्रीजे ने अरहम से लापरवाही से पूछा, ओ यार लाला, तुम इतने खड़ूस क्यों हो? मैं तुम्हारा लाला नहीं हूँ। अरहम गुस्से से चिल्लाया, तुम जैसा खड़ूस हमारा लाला हो भी नहीं सकता। प्रीजे ने कहा। वो अपने नए घर में सबको खुश करने और खुश रहने की तरकीब भी सोचने लगी थी। ये शादी मोहब्बत या रजामंदी का नतीजा नहीं थी, बल्कि ख़ानदानी इज्जत और मसलहतों के तहत दो मुख्तलिफ शख्सियतों को एक दूसरे के साथ जोड़ने की एक ज़बरदस्ती कोशिश थी। इस वाक़े ने अरहम और प्रीजे की ज़िंदगी को यकसर बदल दिया और इनके ताल्लुकात का नया इम्तिहान शुरू किया था। प्रीजे को गुफ्तगू का फ़न खूब आता था। वो किसी भी बात को मज़ाहिया अंदाज में मोड़ देती और अपने शौक जुमले से सबको हंसा देते। अगर कोई उसे डांटने की कोशिश करता तो वो मासूमियत से कहती, मैंने तो सिर्फ अच्छा करने की कोशिश की थी, अब आपको बुरा लगा तो मैं क्या करूं। दादा साईं की मौजूदगी में भी वो अपनी बात कहने से डरती नहीं थी। दादा साईं, आप तो बस हमेशा डराते रहते हैं,
कभी मुस्कुरा भी लिया करें। दादा साईं को भी परीजे के छोटे छोटे मजाक अच्छे लगने लगे थे और वो हर वक्त खामोश रहने वाले दादा साईं भी परीजे की शरारतों से मुस्कुराने लगे थे। परीजे अपने वालिदैन की सबसे छोटी बेटी थी और उसे हमेशा आज़ादी मिली थी। इस पर ज़्यादा पाबंदियां नहीं थीं, इसलिए उसकी शख्सियत आज़ाद और शौक बन गई थी। वो जिम्मेदारियों से भागने के बहाने ढूंढती थी, लेकिन अगर किसी को मुश्किल में देखती तो मदद के लिए सबसे पहले पहुंचती थी। अरहम जैसे संजीदा और गुस्सैले इंसान के लिए परीजे का ये शौक और बेपरवाह अंदाज बिल्कुल नया था। अरहम अक्सर परीजे की शरारतों से तंग आ जाता, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी मासूमियत और ज़िंदगी से भरपूर रवैया उसे मुतासिर भी करता था। परीजे की यही शरारतें अरहम के गुस्से और तलखी को कम करने का जरिया बन सकती थीं, लेकिन अरहम अपनी पुरानी मोहब्बत और तल्ख माजी के बायस परीजे को कबूल करने में नाकाम रहा था। परीजे की शरारतों के पीछे उसका खुलूस और मोहब्बत भरा दिल छुपा हुआ था। वो चाहती थी कि हर कोई खुश रहे और ज़िंदगी को हंस कर गुजारे। अगर कोई उससे नाराज़ होता तो वो फ़ौरन उसको मनाने के लिए कोई ना कोई नया मजाक सोच लेती या मासूमियत से माफ़ी मांग लेती। अपनी मासूम शरारतों के ज़रिए वो अपने आसपास के माहौल में खुशी लाने की कोशिश करती थी। अरहम अभी तक गुल की मोहब्बत से बाहर न निकल सका था। उससे हर वक्त बस एक ही पछतावा लगा रहता कि गुल उससे दूर कर दी गई है और परीजे जैसी बिला ज़बरदस्ती उसके सर पर डाल दी गई है, जिसके बारे में अरहम ने आज तक कभी सोचा तक न था। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि उसकी ज़िंदगी में इतना बड़ा बदलाव कैसे आ गया था। इस सब ने अरहम की ज़िंदगी को और भी उदास कर दिया था। अरहम ने कमरे में आकर ज़ोर से दरवाज़ा बंद किया। परीजे ने पूछा, लाला क्या हो गया? अरहम गुस्से से चिल्लाया, मैं तुम्हारा लाला नहीं हूँ। कितनी बार मैंने तुम्हें बताया है, तुम तो मेरे सर पर ज़बरदस्ती मुसल्लत की गई हो। चले जाओ यहाँ से। अरहम इतनी ऊंची आवाज़ में चिल्लाया कि सुनकर परीजे सहम गई थी। परीजे मासूमियत से बोली, लाला तुम क्या कहता है? मुझे कभी कभी तुम्हारी बातों की बिल्कुल समझ नहीं आती। परीजे का ये जवाब सुन के अरहम बहुत शर्मिंदा हुआ। उसे अपना ऊंचा चलाने पर अफसोस हुआ था। अरहम को इस बात का पहली बार अंदाज़ा हो रहा था कि इस सब में परीजे का तो कोई कसूर नहीं, न गुल को इससे दूर करने में और न उससे शादी होने में। ये सब तो दादा जान का फैसला था और इस सब में मासूम परीजे बिला वजह पिस रही थी। अरहम की सख्त मिजाजी और गुस्से ने परीजे को खामोश कर दिया था। वो जो हमेशा शोखियों और बातों से हर किसी का दिल जीत लेती थी, अब अरहम के सामने ज़्यादा बोलने से कुतराने लगी थी। परीजे को अरहम के गुस्से और तलखी से डर तो नहीं लगता था, लेकिन वो इसे मज़ीद नाराज़ करने से भी गुरेज करती थी। अरहम का रवैया उसे ये एहसास दिलाने लगा था कि वो इस रिश्ते को कभी कबूल नहीं करेगा। हालांकि परीजे अपनी मासूमियत और शरारतों से अरहम के दिल तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी, मगर अरहम का सख्त रवैया उसकी हर कोशिश को नाकाम बना देता। दूसरी जानिब अरहम के दिल में भी परीजे के लिए एक अजीब सी कशमकश जारी थी। उसकी मासूमियत और शौक तबीयत उसे मुतासिर करती थी, लेकिन गुल के साथ अपनी नाकाम मोहब्बत और दादा साईं के फैसले के खिलाफ दिल में जमा होने वाला गुस्सा उसे परीजे से दूर रखता था। अरहम समझ रहा था कि वो परीजे के साथ सख्ती से पेश आकर अपनी बेबसी और मायूसी को छुपाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हकीकत ये थी कि वो खुद को और परीजे दोनों को मज़ीद तकलीफ दे रहा था। परीजे ने जब महसूस किया कि अरहम उससे बात करने में दिलचस्पी नहीं लेता, तो उसने भी आहिस्ता आहिस्ता अपनी शोखियों और बातों को कम कर दिया। वो अब ज़्यादातर खामोश रहती थी और अरहम के गुस्से से बचने के लिए उससे कम कम बात करती थी, लेकिन उसकी ये खामोशी अरहम के दिल में एक खला पैदा करने लगी थी। अरहम जो अपनी सख्ती में मुब्तला था, अब परीजे की खामोशी को महसूस करने लगा था। वो सोचने पर मजबूर हुआ कि शायद उसका रवैया गलत था और उसकी वजह से एक मासूम लड़की जो हमेशा खुश रहना और दूसरों को खुश रखना चाहती थी, खामोश हो गई थी। अरहम को अपनी गलतियों का एहसास उस वक्त हुआ जब वो एक रात तन्हा बैठा अपनी ज़िंदगी के फैसलों के बारे में सोच रहा था। उसने याद किया कि परीजे हमेशा किस तरह हंसती खेलती और बातें करती थी और वो कितनी खामोश हो चुकी थी। उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी लगी हुई थी। उसे एहसास हुआ कि परीजे को तकलीफ देकर वो खुद को भी तकलीफ दे रहा था। अरहम ने सोचा कि शायद उससे अपनी गलती का एतराफ़ करके परीजे से माफ़ी मांगनी चाहिए और उसके साथ एक नया आगाज़ करना चाहिए। अगली सुबह अरहम ने खुद को तैयार किया कि वो परीजे से अपने रवैये पर माफ़ी मांगेगा। वो कमरे में दाखिल हुआ तो परीजे को खिड़की के पास बैठे पाया। वो बाहर देख रही थी और उसके चेहरे पर वो मुस्कुराहट नहीं थी जो हमेशा उसे खुश मिजाज दिखाती थी। अरहम ने आहिस्ता से कहा, परीजे मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। परीजे ने हैरानी से उसकी तरफ देखा, लेकिन कुछ बोली नहीं थी। अरहम ने नरमी से कहा, मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत सख्ती की है। मेरा रवैया तुम्हारे लिए बहुत तकलीफ दे रहा होगा
और उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। प्रीजे की आंखों में हैरत के साथ एक चमक आई, लेकिन वो खामोश रही। अरहम ने मज़ीद कहा, मुझे एहसास हुआ है कि मेरा गुस्सा और रवैया सिर्फ तुम्हें नहीं बल्कि मुझे भी तकलीफ दे रहा था। मैं नहीं चाहता कि तुम मुझसे दूर रहो। अगर तुम्हें बुरा न लगे तो क्या हम दोबारा एक नए सिरे से दोस्ती कर सकते हैं? प्रीजे ने थोड़ा सोचकर जवाब दिया, अरहम, मैंने कभी तुमसे नाराज़ होने या दूर रहने की कोशिश नहीं की। मैं सिर्फ ये चाहती थी कि तुम मुझे समझो और मुझे अपने करीब आने दो। अगर तुम वाकई दोस्ती करना चाहते हो तो मैं भी इसके लिए तैयार हूँ। इसके जवाब ने अरहम के दिल को सुकून दिया। उसने पहली बार महसूस किया कि प्रीजे की मासूमियत और मोहब्बत ने उसके दिल के बंद दरवाजे खोल दिए हैं। उस दिन के बाद अरहम और प्रीजे के दरमियान एक नई शुरुआत हुई। अरहम ने कोशिश की कि वो प्रीजे के साथ नरमी और मोहब्बत से पेश आए। उसने अपने गुस्से को काबू में रखना सीखा और प्रीजे की शरारतों और बातों का मुस्बत जवाब देना शुरू किया। प्रीजे जो पहले अरहम से बात करने में झिझक महसूस करती थी, अब दोबारा अपनी शौक तबीयत में वापस आ गई थी। वो अरहम के लिए छोटे छोटे मज़ाहिर जुमले बोलती और अरहम भी कभी कभार मुस्कुरा देता था। ये दोस्ती न सिर्फ इन दोनों की ज़िंदगी में सुकून लेकर आई बल्कि उनके रिश्ते को भी मजबूत बनाने लगी। प्रीजे की मासूम शरारतों और अरहम की बदली हुई शख्सियत ने इनके दरमियान एक नया ताल्लुक कायम कर दिया जो मोहब्बत और एतमाद पर मबनी था। अरहम ने दिल से फैसला किया कि वो प्रीजे को इस रिश्ते में खुश रखने की हर मुमकिन कोशिश करेगा और प्रीजे ने भी अरहम के दिल को जीतने के लिए अपनी शोखियों और मासूमियत का जादू चलाना शुरू कर दिया था। अरहम, जो पहले गुस्से और सख्त मिजाजी के लिए मशहूर था, अब आहिस्ता आहिस्ता अपने रवैये में तब्दीली लाने लगा। प्रीजे के लिए इसके दिल में पैदा होने वाले जज्बात इसे मजबूर कर रहे थे कि वो खुद को बदले और नरम रवैया इख्तियार करे। अरहम को यह एहसास हो रहा था कि प्रीजे की मासूमियत और खलूस उसके दिल में ऐसी मोहब्बत जगा चुके हैं जिसे वो अब इनकार नहीं कर सकता था। अरहम ने अपने गुस्से पर काबू पाने की कोशिश शुरू कर दी। जब कभी प्रीजे कोई छोटी गलती करती या कोई बात बेध्यानी में कह देती तो पहले की तरह अरहम फौरन गुस्से में आ जाने की बजाय खामोश रहने लगा। वो खुद को याद दिलाता कि प्रीजे की खुशी और सुकून उसके लिए अहम है। एक दिन जब प्रीजे ने मजाक में कुछ कहा और अरहम ने मुस्कुराकर जवाब दिया तो प्रीजे हैरान रह गई। ये वो अरहम नहीं था जिसे वो पहले जानती थी। अरहम अब प्रीजे की छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने लगा था। अगर प्रीजे थकी हुई नजर आती तो अरहम उससे पूछता कि वो ठीक है या नहीं। एक दिन जब प्रीजे के सर में दर्द था तो अरहम खुद उसके लिए दवा लेकर आया। प्रीजे ने शुक्रगुजार नज़रों से उसकी तरफ देखा और अरहम के दिल में ये देखकर खुशी हुई कि वो उसके लिए कुछ कर सका। ये मामूली से लम्हात उनके दरमियान कुर्बत बढ़ा रहे थे। पहले जहाँ अरहम प्रीजे से मुख्तसर और सख्त लहजे में बात करता, अब उसकी गुफ्तगू में नरमी आ गई थी। वो प्रीजे की बातों को गौर से सुनता और उसके ख्यालात की इज्जत करने लगा था। एक दिन जब प्रीजे ने एक मुश्किल मसले पर अपनी राय दी तो अरहम ने उसे सराहा और कहा, तुम्हारी बात में वजन है, मैंने पहले इस जाविये से नहीं सोचा था। प्रीजे के चेहरे पर खुशी देखकर अरहम को अंदाजा हुआ कि इसकी नरमी और इज्जत प्रीजे को खुश करती है। अरहम ने छोटे छोटे लम्हात के जरिए अपनी मोहब्बत को जाहिर करना शुरू कर दिया। वो कभी कभार प्रीजे के पसंदीदा फूल लेकर आता या उसके लिए कोई छोटा तोहफा खरीद लाता। एक दिन जब प्रीजे ने जिक्र किया कि वो किताबों से मोहब्बत करती है तो अरहम ने ख़ास तौर पर उसके लिए खूबसूरत किताब खरीदी और इसे तोहफे में दी। प्रीजे ने हैरत और खुशी के साथ किताब कबूल की और ये लम्हा अरहम के लिए नाकाबिले फरामोश था। प्रीजे बेहद खूबसूरत होने के साथ एक बहुत सेहतमंद लड़की थी जो कि अपनी उम्र से बड़ी लगा करती थी। प्रीजे बड़ी हो गई थी और वो अरहम की मोहब्बत को समझने लगी थी। इन दोनों की ज़िंदगी बहुत खुशगवार गुजर रही थी। प्रीजे और अरहम दोनों अपनी ज़िंदगी के गुज़श्ता हालात और नाखुश वाक़यात को भूलकर अपनी नई और खुशगवार ज़िंदगी का आगाज़ कर चुके थे। अरहम की नरमी और मोहब्बत भरे रवैये ने प्रीजे को भी बदल दिया था। वो अब अरहम से ज़्यादा खुलकर बात करती और उसके साथ वक्त गुजारने से लुत्फ़अंदोज़ होती थी। अरहम को ये एहसास हो रहा था कि मोहब्बत सिर्फ दिल में रखने का नाम नहीं बल्कि उसे अमल से जाहिर करना भी ज़रूरी है। इसकी मोहब्बत और नरम रवैया इन दोनों के ताल्लुक को एक नया रंग दे रहे थे। ये बदलाव अरहम के लिए भी हैरान कुन था। उसने अपनी ज़िंदगी में पहली बार किसी के लिए इतनी कुर्बानी दी थी और ये कुर्बानी उसे खुशी दे रही थी। वो समझ गया था कि प्रीजे के साथ वक्त गुजारना, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट देखना ही उसकी खुशी का सबब था। ये नरमी और मोहब्बत भरे जज्बात अरहम को उसके दिल की गहराइयों से मोहब्बत का एहसास दिला रहे थे और उसे प्रीजे के करीब लाते जा रहे थे। प्रीजे के साथ वक्त गुजरते हुए वो गुल के साथ गुजरे हुए वक्त को भूलने लगा था। वो अपने जख्मों पर मरहम लगाने लगा था। वो प्रीजे के साथ न समझी की ज़िंदगी को बहुत लुत्फ़अंदोज़ होकर गुजारने लगा। उसे इस बात पर यकीन आ गया था कि वक्त जो फैसला करता है वही बेहतरीन होता है।
خدا نے اگر ارہم سے گل لی تو اسے گل سے بھی زیادہ بہترین پریزیں عطا کی تھی، جس پر وہ بہت خوش تھا۔ وہ اب اپنے پرانے وقتوں کو اسی خوشی کے ساتھ بھول جانا چاہتا تھا۔ وہ اس کو خود تو کیا بھولتا، وقت ہی ایسا گزر رہا تھا کہ پریزے کے ساتھ اتنا گھل مل گیا تھا کہ اسے کچھ یاد ہی نہ آتا تھا کہ کبھی برا وقت بھی آیا تھا۔ اس سے اب صرف خوشی اور محبت کا ہی احساس ہوتا تھا۔ ارہم اور پریزے کی خوشحال زندگی نہ صرف ان دونوں کے لیے خوشی کا باعث تھی، بلکہ ان کے خاندان کے لیے بھی باعث اطمینان بن چکی تھی۔ دادا سائیں، جنہوں نے ہمیشہ ارہم کی زندگی میں مثبت تبدیلیاں دیکھنے کی خواہش کی تھی، اپنے پوتے کی خوشی دیکھ کر بے حد خوش تھے۔ وہ اکثر کہتے، ارہم نے آخر کار اپنی زندگی کو سنوار لیا اور پریزے جیسی بیوی اس کی خوش قسمتی ہے۔ دادا سائیں کے دل میں پریزے کے لیے عزت اور محبت مزید بڑھ گئی تھی، کیونکہ انہوں نے دیکھا تھا کہ اس کی موجودگی نے ارہم کو بہتر انسان بنا دیا تھا۔ ارہم کی والدہ بھی خوشی سے سرشار تھیں۔ وہ ہمیشہ چاہتی تھیں کہ ارہم کو ایک ایسی شریک حیات ملے جو اس کی زندگی میں سکون اور خوشی لے کر آئے۔ پریزے کی نرم مزاجی اور محبت بھرے رویے نے نہ صرف ارہم بلکہ اس کے گھر والوں کو بھی جوڑ دیا تھا۔ ارہم کی والدہ اکثر پریزے کے ساتھ وقت گزارتی، اس کے لیے اپنی پسندیدہ ترکیبیں بناتی اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کھل کر باتیں کرتی۔ وہ کہتی، پریزے تم ہماری زندگی کی روشنی ہو۔ ارہم اور پریزے کی زندگی میں سکون اور خوشحالی تھی۔ ارہم نے اپنی سخت مزاجی کو ہمیشہ کے لیے الوداع کہہ دیا تھا اور پریزے کی محبت نے اس کے دل کو مکمل طور پر بدل دیا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کا خیال رکھتے، چھوٹے چھوٹے لمحات میں خوشی تلاش کرتے اور ایک دوسرے کے ساتھ زندگی کا ہر لمحہ گزارنے کو اہمیت دیتے۔ ارہم اور پریزے بہت اچھے دوست اور ہم سفر بن گئے تھے۔ ارہم پریزے کو کتابیں لا کر دیتا، پریزے کو خود پڑھاتا، اس کے ٹیسٹ لیا کرتا تھا۔ پریزے کو کہانیاں سننے میں بہت دلچسپی تھی۔ ارہم اور پریزے کے درمیان محبت کے رشتے میں گہرائی پیدا کرنے والے وہ لمحات تھے جب ارہم نے پریزے کو کتابیں لا کر دینے اور اسے خود پڑھانے کا سلسلہ شروع کیا۔ ارہم کو معلوم تھا کہ پریزے کو کتابیں پڑھنے کا بہت شوق ہے اور وہ اس شوق کو مزید خوبصورت بنانے کے لیے اس کی پسند کی کتابیں تلاش کر کے لاتا۔ ایک شام کا منظر تھا، ہلکی بارش ہو رہی تھی اور کھڑکی کے قریب بیٹھے ارہم نے پریزے کے لیے خوبصورت محبت بھری کہانی کی کتاب خریدی۔ اس نے وہ کتاب پریزے کو دی اور مسکراتے ہوئے کہا، یہ تمہارے لیے ہے اور آج میں تمہیں خود پڑھ کر سناؤں گا۔ پریزے نے حیرت اور خوشی کے ملے جلے جذبات کے ساتھ کتاب کو تھاما اور بولی، تم میرے لیے اتنا سب کیوں کرتے ہو؟ ارہم ہلکی مسکان کے ساتھ بولا، کیونکہ تم میری زندگی کی سب سے خاص شخص ہو۔ یہ سن کر پریزے بہت کھل کر مسکرائی۔ ارہم نے کتاب کے پہلے صفحے سے کہانی پڑھنا شروع کی اور اس کی آواز میں اتنی نرمی اور محبت تھی کہ پریزے بے خود ہو کر سنتی رہی۔ وہ کبھی ارہم کو دیکھتی اور کبھی کہانی کے الفاظ میں کھو جاتی۔ ارہم نے ایک دلچسپ موڑ پر کہانی روک دی اور مذاق کرتے ہوئے بولا، اگر یہ تم چاہتی ہو کہ میں باقی کہانی پڑھوں تو تمہیں مجھے چائے بنا کر دینی ہوگی۔ پریزے نے ہنستے ہوئے کہا، کتنا ڈرامہ کرتی ہو تم، اور مجھے باہر اکیلی کو ڈر لگتا ہے، میں نہیں جاؤں گی۔ کبھی کبھی ارہم جان بوجھ کر کہانی کسی کردار پر بحث چھیڑ دیتا تاکہ پریزے کے خیالات جان سکے۔ وہ دونوں کہانیوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے اتنا محو ہو جاتے کہ وقت کا پتہ ہی نہ چلتا۔ ارہم کی یہ عادت پریزے کو بہت خاص محسوس ہوتی تھی اور وہ سوچتی کہ دنیا کی ہر لڑکی کو ایسا ہمسفر ملنا چاہیے۔ وہ نہ صرف اس کے شوق کو سمجھے بلکہ اس میں دلچسپی بھی لے۔ ایک دن ارہم پریزے کو کہانی سنا رہا تھا کہ اس میں اس چڑیل کا کردار آیا تو ارہم نے پریزے سے کہا، تمہیں پتہ ہے کہ چڑیل کون ہوتی ہے؟ پریزے نے کہا، نہیں۔ ارہم نے کہا، یہ چڑیل تم ہو، اور زور زور سے ہنسنے لگا۔ یہ سن کر پریزے نے گال پھلا لیا اور کہا، اس میں جو بابا آیا تھا وہ پتہ کون تھا؟ ارہم نے کہا، نہیں پریزے، نہیں، وہ بابا ارہم ہوتا ہے، اور پھر خود بھی زور زور سے ہنسنے لگی۔ بعض اوقات مذاق کرتے کرتے ان کی لڑائی بھی ہو جایا کرتی تھی۔ یہ محبت اب نیا موڑ لینے لگی تھی۔ گل کی غریبی کی وجہ سے دادا سائی نے گل کو گھر کی ملازمہ رکھ لیا تھا۔ ارہم نے گل کو گھر کے کام کرتے ہوئے دیکھا تو اسے اس کی زندگی کی مشکلات کا شدت سے احساس ہوا۔ گل کے ہاتھوں کی دراڑیں اور آنکھوں کی اداسی ارہم کے دل میں ہمدردی اور حفاظت کا جذبہ پیدا کرتی تھی۔ وہ گل کی مدد کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کا دل یہ بھی جانتا تھا کہ یہ ہمدردی کہیں پریزے کے ساتھ اس کے رشتے کو متاثر نہ کر دے۔ حالات میں ارہم کو دونوں طرف سے پھنسا کر رکھ دیا۔ پریزے ارہم کی زندگی کی محبت، ارہم کی توجہ اور محبت کو اپنے لیے خاص سمجھتے تھے۔ ارہم کی پریزے کے ساتھ خوشگوار زندگی گزر رہی تھی، لیکن گل کی آمد نے ارہم کے دل میں ایک نئی الجھن پیدا کر دی تھی۔ وہ گل کی غربت اور معصومیت کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا، لیکن وہ یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ پریزے کو لگے کہ ارہم کی توجہ کسی اور طرف بھی ہے۔ گل کو یہ امید تھی کہ ارہم آج بھی اس سے محبت کرتا ہے، وہ اس کی مجبوری کو سمجھے گا اور وہ اب بھی اس کو تھام لے گا اور اس کے تمام دکھ اپنے سر لے لے گا۔ لیکن وہ ارہم اب دو حصوں میں بٹ چکا تھا۔
वो गुल के हिस्से नहीं आना चाहता था, लेकिन वो गुल को दुख भी नहीं दे सकता था। गुल ने अरहम को बहुत बार मुखातिब करने की कोशिश की, लेकिन अरहम उससे मुसलसल नज़रअंदाज कर रहा था, जो गुल के लिए बहुत तकलीफ दे था। गुल अपने हालात की वजह से बहुत ज़्यादा मुरझा सी गई थी और अरहम की नज़रअंदाजी उसे मज़ीद अंदर ही अंदर खा रही थी, जिसका ना तो वो किसी से जिक्र कर सकती थी और ना ही कोई इसका मुदावा कर सकता था। अरहम रातों को जाकर सोचता कि वो इस मसले का हल कैसे निकाले। वो गुल की मदद करना चाहता था, लेकिन उसे खौफ था कि कहीं प्रीज़े उसे गलत न समझे। गुल की आंखों में उदासी देखकर अरहम का दिल पिघल जाता, लेकिन वो खुद को याद दिलाता कि उसकी अव्वलीन जिम्मेदारी प्रीज़े के साथ है। वो गुल से हमदर्दी के चक्कर में प्रीज़े को खुद से दूर नहीं करना चाहता था। इस डर से वो गुल को सहारा नहीं बन सकता था, लेकिन वो गुल को अकेला भी नहीं छोड़ सकता था। वो दोनों तरफ से किसी एक का इंतखाब करने में अभी तक नाकाम रहा। अरहम को अपना मसीहा समझने लगी थी। अरहम की हल्की सी हमदर्दी उसके दिल में उम्मीद जगा देती। अरहम का गुल से नरमी से बात करना और उसकी मदद करना गुल को खुशी देता था, लेकिन अरहम ये समझता था कि कहीं गुल के दिल में उसके लिए गलत उम्मीदें पैदा ना हो जाएं। अरहम गुल की मदद करना चाहता था, लेकिन प्रीज़े से अपनी मोहब्बत को भी बरकरार रखना चाहता था। ये जज्बाती कश्मकश उसे अंदरूनी तौर पर तोड़ रही थी। अरहम को ये भी डर रहता कि अगर प्रीज़े को गुल के साथ उसकी हमदर्दी का पता चल गया तो वो गलत न समझे और उनके ताल्लुकात मुतासिर न हो। लेकिन वो ये बात वाज़ेह तरीके से गुल को भी नहीं बता सकता था कि प्रीज़े ही अब उसकी खुशी का वाहिद मरकज़ है। वो जब भी कोशिश करता कि गुल को ये बताए कि वो प्रीज़े के साथ बहुत खुश है, तो वो गुल के हालात और उसकी बुरी ज़िंदगी देखकर खामोश हो जाता। वो नहीं चाहता था कि वो उस हालात से मारी हुई लड़की को जज्बात से बीमार थे, लेकिन ये बात तो तय थी कि अब अरहम के दिल में सिर्फ प्रीज़े की मलकियत थी और वो अब इसको गुल से भी नहीं बांटना चाहता था। अरहम के रवैये में तब्दीलियाँ आ रही थीं और प्रीज़े इसको बखूबी महसूस कर रही थी। अरहम जो पहले हर वक्त प्रीज़े के साथ हंसी मजाक करता, बातें करता और अपनी मोहब्बत का इजहार करता था, अब कभी कभार ख्यालों में गुम नजर आता। वो गुल के लिए अपनी हमदर्दी और मदद को छुपाने की कोशिश करता था, लेकिन प्रीज़े जैसे हसास दिल रखने वाली लड़की ये बात महसूस किए बगैर नहीं रह सकी। प्रीज़े ने कई दिनों तक अरहम के बदले हुए रवैये को नज़रअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन जब उसने देखा कि अरहम गुल के कामों में ज़्यादा दिलचस्पी लेने लगा है और उसे देखकर कुछ ज़्यादा नरम रवैया अपनाने लगा है, तो इसका दिल बेचैन हो गया। एक दिन प्रीज़े ने हिम्मत जमा की और अरहम से बराह रास्त पूछा, अरहम, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? ये गुल तुम्हारे लिए इतनी ख़ास क्यों है? एकदम तो अरहम के होश उड़ गए। अरहम ने प्रीज़े की आंखों में देखकर एक गहरी सांस ली। वो जानता था कि अब सच छुपाना उनके रिश्ते के लिए नुकसानदेह हो सकता है। उसने नरमी से कहा, प्रीज़े, तू मेरी ज़िंदगी की सबसे कीमती चीज़ हो। गुल मेरे लिए कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ एक मुलाज़मा है जो इस घर में अपनी मुश्किलात की वजह से काम कर रही है, लेकिन उसकी गुर्बत और तकालीफ देखकर मैं उसे नज़रअंदाज नहीं कर सकता। वो मुझसे कोई उम्मीद या मोहब्बत नहीं रखती और मैं उससे कोई ताल्लुक़ नहीं रखता जो हमारे रिश्ते पर असर डाले। दादा साईं ने उसे मुलाज़मा रखा है और वो अपनी ज़िंदगी के मसाइल से लड़ रही है। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि वो अपनी ज़िंदगी बेहतर बना सके। मैंने उसे पढ़ाई के लिए मदद की पेशकश की है ताकि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके, लेकिन प्रीज़े, मेरे दिल की धड़कन सिर्फ तुम हो, मेरी मोहब्बत, मेरा सुकून सिर्फ तुम हो। प्रीज़े ने इस बात में सर हिलाया और मुस्कुरा दी। प्रीज़े, मेरी मोहब्बत पर शक मत करो। मैंने ज़िंदगी में जो भी फ़ैसला लिया वो तुम्हारे बगैर कभी मुकम्मल नहीं हो सकता। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वो एक इंसान होने के नाते अपनी जिम्मेदारी समझ के कर रहा हूँ, लेकिन मेरी मोहब्बत और ज़िंदगी सिर्फ तुम हो। तुम मेरे लिए सब कुछ हो। प्रीज़े ने अरहम की बातों को गौर से सुना। अरहम के अल्फाज और उसकी आंखों में सच्चाई ने प्रीज़े के दिल से शक दूर कर दिया। उसने अरहम से कहा, अरहम, मैं तुम्हें समझती हूँ, मैं तुम्हारी नीयत और दिल की पाकीज़गी पर यकीन रखती हूँ, लेकिन अगर कभी कुछ बातें मुझसे छुपाओगे तो वो हमारे रिश्ते को कमज़ोर करेंगी। वादा करो कि अब से कुछ भी होगा तो मुझसे सब कुछ साफ साफ कहोगे। अरहम और प्रीज़े के दरमियान मोहब्बत मजबूत हो चुकी थी, लेकिन अरहम के दिल में एक बोझ था जो उसे मुसलसल बेचैन किए रखता था। वो जानता था कि अगर उनकी मोहब्बत को मुकम्मल और सच्चाई पर मबनी बनाना है तो उसे अपने माजी का हर राज प्रीज़े को बताना होगा। एक दिन अरहम ने हिम्मत की और प्रीज़े को बिठाकर अपने माजी की कहानी सुनाने का फैसला किया। अरहम ने गहरी सांस ली और प्रीज़े से कहा, प्रीज़े, तुम मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा हो और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे बारे में सब कुछ जानो, लेकिन मेरे माजी में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शायद तुम्हें परेशान कर सकती हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे दिल की सच्चाई को समझो और जान लो कि मैंने वो सब क्यों किया। प्रीज़े ने अरहम के हाथ को थाम लिया और उसे हौसला दिया। अरहम, तुम जो भी कहोगे मैं सुनूंगी और समझने की कोशिश करूंगी, क्योंकि मोहब्बत सच्चाई के बगैर मुकम्मल नहीं होती। मेरा बचपन कोई आम बचपन नहीं था। बचपन में मेरे वालिद की वफ़ात हो गई।
उसे मुझ पर हमेशा से दादा साईं सरपरस्त रहे। मैं बहुत नरम इंसान था। वो मुझे हमेशा से रवायात और ख़ानदान का पासदार बनाना चाहते थे, लेकिन मैं ये सब नहीं करना चाहता था। मैं आज़ाद दिल इंसान था, लेकिन उन्होंने मुझे पिंजरे में कैद कर दिया। वो मुझसे बहुत मोहब्बत भी करते थे, लेकिन मैं उनके ख़ानदानी उलझनों का शिकार नहीं होना चाहता था, और मैं उनके ख़ानदान का आखिरी चश्मो चिराग होने की वजह से उनकी सरपरस्ती में रहना मेरा फ़र्ज़ और मेरी मजबूरी दोनों था। अपनी मर्जी करना चाहता था, लेकिन दादा जान हमेशा मुझे वो करने को कहते जो मैं नहीं करना चाहता था। जो वो चाहते थे मैं वो करता था। वो पढ़ता था जो वो कहते थे, वो खाता था जो वो चाहते थे, वो कर देता था। आज तक कभी मेरी मर्जी न सुनी गई, जिस पर मैं अंदर से खाया गया। फिर मैं गुल से मिला और मुझे लगा कि मेरी ज़िंदगी मुकम्मल हो जाएगी। मेरी ज़िंदगी में अब इनकलाब आएंगे। ये लड़की मेरी ज़िंदगी को अच्छा बनाएगी, मुझे जानेगी, पहचानेगी। मैं इसको बहुत सारी खुशियाँ दूंगा। हमारी शादी हो जाएगी और हम खुशगवार ज़िंदगी गुजारेंगे। लेकिन वक्त में ऐसा मुआवजा किया कि मुझे तुमसे मिला दिया और मेरी ज़िंदगी बदल गई। प्रीजे ने अरहम की कहानी को गहरी तवज्जो से सुना। उसके दिल में अरहम के लिए हमदर्दी और मोहब्बत मज़ीद बढ़ गई। उसने कहा, अरहम, तुमने अपनी गलतियों को कबूल किया और उनसे सीखा। यही तुम्हारी असल खूबी है। हम सब गलतियाँ करते हैं, लेकिन हर कोई उनसे सबक नहीं सीखता। मैं तुम्हारे माजी को नहीं, तुम्हारी मौजूदा शख्सियत को देखती हूँ। तुमने जो कुछ भी किया वो तुम्हें बेहतर इंसान बनाने का ज़रिया बन गया। मुझे बस इस चीज़ की खुशी है कि तुमने सब कुछ मुझे बताया। मेरे लिए यही काफ़ी है। तुम मेरे लिए सबसे अहम हो और तुम्हारी इस कदर में कभी कमी नहीं आएगी, ये यकीन रखो मेरा, परीजे ने कहा। अरहम ने परीजे का शुक्रिया अदा किया और कहा, परीजे, तुम्हारी ये बातें मेरे दिल का बोझ हल्का कर रही हैं। मैं वादा करता हूँ कि अब से कुछ भी होगा मैं हमेशा तुमसे सच कहूँगा। तुम मेरी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत हकीकत हो। उस दिन के बाद अरहम और परीजे के रिश्ते में मज़ीद मजबूती आ गई। उनके दरमियान एतमाद और मोहब्बत ने हर शक और खौफ को ख़त्म कर दिया। दोनों ने मिलकर अपनी ज़िंदगी को मोहब्बत, सच्चाई और खुशियों से भरने का अज़म किया। अरहम के दादा साईं एक ऐसे शख्स थे जो हर किसी का ख्याल रखने वाले और दूर अंदेशी में मशहूर थे। उन्होंने गुल की गुर्बत और मुश्किलात को देखते हुए फैसला किया कि गुल के मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए उसे एक महफूज और खुशहाल ज़िंदगी देनी चाहिए। उन्होंने अपनी हिकमत और जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए गुल के लिए एक अच्छे और नेक दिल शख्स का इंतखाब किया जो इसे इज्जत दे और मोहब्बत से उसका ख्याल रखे। दादा साईं ने अपने गांव के एक नौजवान शाहनवाज को गुल के लिए मुंतखब किया। शाहनवाज एक मेहनती, नेक दिल और इज्जत देने वाला शख्स था जो अपनी ज़िंदगी में किसी को खुश रखने का अज़म रखता था। दादा साईं ने गुल से बात की और उसे यकीन दिलाया कि ये फैसला उसकी खुशियों के लिए किया जा रहा है। गुल पहले तो थोड़ी हिचकिचाई, लेकिन दादा साईं की मोहब्बत और रहनुमाई ने उसके दिल को सुकून बख्शा। अरहम ने भी गुल से बात की और उसे यकीन दिलाया कि वो हमेशा उसके लिए दुआगो रहेगा और उसके हर फैसले की हिमायत करेगा। अरहम ने गुल की खुशहाल मुस्तकबिल के लिए नई ख्वाहिशात का इजहार किया, जिससे गुल के दिल को तक़वियत मिली। दादा साईं ने गुल की शादी बड़ी इज्जत और वक़ार के साथ करवाई। शादी की तकरीब सादा मगर खुशी से भरपूर थी। गांव के लोग इस शादी में शरीक हुए और गुल के लिए दुआ की। अरहम और परीजे ने भी पूरी तैयारी के साथ शादी में हिस्सा लिया और गुल के लिए सब कुछ बेहतरीन बनाने की कोशिश की। गुल ने अपनी आंखों में खुशी के आंसू लिए। शाहनवाज के साथ एक नए सफ़र का आगाज़ किया। वो जानती थी कि दादा साईं ने उसके लिए जो फैसला किया है वो उसकी ज़िंदगी को एक नई रोशनी देगा। शादी के बाद गुल ने अपनी नई ज़िंदगी का आगाज़ मोहब्बत और सुकून के साथ किया। शाहनवाज ने उसे हर तरह की इज्जत और प्यार दिया। गुल ने अपनी पुरानी ज़िंदगी को पीछे छोड़ते हुए एक नई शुरुआत की, जहां वो खुशी से अपनी ज़िंदगी के हर लम्हे को जीने लगी। अरहम और परीजे ने भी गुल की ज़िंदगी की खुशियों में हिस्सा लिया और उसके साथ राब्ता बरकरार रखा। गुल की कामयाब और खुशहाल ज़िंदगी देखकर दादा साईं और अरहम को सुकून मिला कि उन्होंने एक दुरुस्त फैसला किया। गुल ने अपनी ज़िंदगी के हर लम्हे में दादा साईं, अरहम और परीजे को अपनी दुआओं में याद रखा। वो जानती थी कि इन सब की मोहब्बत और मदद के बगैर वो यहाँ तक न पहुँच पाती। गुल ने अपनी ज़िंदगी को मिसाल बनाया कि मुश्किलात और गुर्बत के बावजूद मोहब्बत और रहनुमाई किसी की ज़िंदगी को बदल सकती है। गुल अब एक खुशहाल, मुतमईन ज़िंदगी गुजार रही थी, जहाँ उसके दिल में किसी भी शिकायत की जगह न थी। उसकी ज़िंदगी की कहानी हर उस शख्स के लिए एक मिसाल बन गई जो मुश्किलात से घबरा जाता है। सब पुरसकून ज़िंदगी गुजारने लगे। अरहम और परीजे का एक बेटा पैदा हुआ जिसकी परवरिश उन्होंने रवायती और ख़ानदानी तरीके से नहीं, बल्कि एक आज़ाद और खुश नसीब इंसान की तरह की, जिससे सारे ख़ानदान को खुशियाँ हासिल हुईं। स्टोरी अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।